Assalamu alaikum, dear students. You know, we are discussing the third case of reconstitution, that is reconstitution through retirement or death of a partner. So, you know that we have discussed the calculation of new and gaining ratio. We also discussed methods of calculation of properties. We also discussed the accounting treatment of goodwill, hidden goodwill. So, according to procedure that we follow in every case of reconstitution. Now, what we will be discussing according to procedure is that how we will deal with the past accumulated profits, past accumulated items, and then we will be discussing how we will deal with revaluation in this case of reconstitution. This is a normal procedure in every case of reconstitution. Firstly, we find out the effect of change in profit sharing ratio on partners. We see which partner has sacrificed, which has gained, and after that, the second step that we follow according to procedure is we give the accounting treatment of goodwill. We calculate the value of goodwill, and in some cases we also calculated hidden goodwill in case of admission and retirement. So the third step that we follow in every case of reconstitution is the treatment of past accumulated items. Past accumulated items, we mean the past accumulated profits, reserves, losses, etc. And then the fourth step that we follow is we study the effect of revaluation. We revalue the assets and reassess the liabilities, and we study the effect of these things. So now in this case also we will be discussing these things according to procedure. Firstly, the accounting treatment of past accumulated items. Past accumulated items. The accounting treatment of past accumulated items, that is past accumulated profits, reserves, reserve funds, losses, etc. You know, the past accumulated items that we find in the balance sheet of the firm, such as the past accumulated profits, profit and loss account, credit balance, past accumulated losses, reserves, reserve funds, for example, workmen's compensation fund, employees state insurance fund, etc. All these items that we find in the balance sheet of the firm belong to all partners. So just like in the first two cases of reconstitution, we distributed these past accumulated items among all partners in the old ratio. Similarly, in this case of reconstitution also, we will distribute these things among all partners in old ratio. So the accounting treatment in all the cases will be same, because these items belong to old partners, all partners that were doing business. And then the revaluation. Then we will be discussing revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. In this case of reconstitution also, we do the revaluation. You know that when the firm is reconstituted, the assets and liabilities are to be revalued at any cost. So in this case also, we revalue the assets and liabilities. We do the revaluation. We prepare the statement showing the effect of revaluation. We prepare the revaluation account just like we prepared in first two cases of reconstitution. And then the net result of revaluation, that is profit or loss on revaluation, will be distributed among all partners in old ratio. Similarly, just like in the first two cases, we distributed the profits or losses on revaluation among all partners, old partners in old ratio.
So in this case also, we will be following that step. We will be following that rule that revaluation profit or loss should be distributed among all partners in old ratio. So so I think that these two things are same in all the three cases, and we have already studied these things in the first two cases. Now here I think there is no need to solve an example on these cases, just to follow the rule, the same rule that we followed in first two cases of reconstitution. Now that we have distributed the past accumulated profits, losses and reserves, we have also done the revaluation. And now what next step we will be following in this case of reconstitution is, that step is somehow an additional step that we follow in this case of reconstitution. There were some additional steps that we followed in case of second case of reconstitution also. Those additional things were, we followed the step of adjustment of capital and we calculated hidden goodwill. In this case also we calculated hidden goodwill. In this case also we will have to adjust the capitals of remaining partners. And now there is one additional step that we follow in this case is, that step is the payment to the retiring. The one additional step, most important step in this case of reconstitution is, we study the payment to retiring or deceased partner, retiring oblique deceased partner. Payment to retiring or deceased partner. What does this convey? What does this mean? Let us discuss it. Whenever a partner retires or dies, he is expelled from the firm. He goes out of the firm. He leaves the firm. And you also know that each and every partner who has been doing business in the firm has his capital or current account in the firm. You know that in his capital or current account there stands some balance, credit or debit balance. You know that in capital account there will be some credit balance, and in current account that may show debit balance at some time. तो इसका मतलब है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, उसका कैपिटल अकाउंट फर्म में होता है. अगर कैपिटल अकाउंट हमने मेंटेन किया है तो उस कैपिटल अकाउंट में उसकी कैपिटल बैलेंस होगी जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में, पहले ओपनिंग कैपिटल जितनी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, और फिर ओपनिंग कैपिटल को कुछ एडिशंस हुई होंगी और कुछ डिडक्शंस भी हुई होंगी इस टाइम के दौरान, जिस टाइम के दौरान उसने पार्टनरशिप में बिजनेस की. फॉर एग्जांपल कभी उसने एडिशनल कैपिटल लाया होगा, उसको सैलरी मिली होगी, उसको कमीशन मिला होगा, उसको गुडविल मिली होगी, कहीं पे उसने ड्राइंग्स की होगी, तो वो सभी चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के बाद हम उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं. अब जिस वक्त ये पार्टनर रिटायर होगा या जिसकी डेथ होगी, जब हम इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, अब ये फर्म से बाहर होता है तो वो पैसा जो उसकी कैपिटल अकाउंट में होता है वो अमाउंट तो हमें उसको पे कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं. हम वो पेमेंट कैसे करते हैं वही हमें डिस्कस करना है. यही एक एडिशनल चीज़ है इस केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है. तो वो पेमेंट हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, यानी गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करना है, सैलरी का एडजस्टमेंट करना है, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें देखना है करंट पोजीशन, पार्टनर जो रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई उसकी कैपिटल की करंट पोजीशन क्या है
जो करंट पोजीशन होगी तो उसी पोजीशन के हिसाब से हमें उससे पेमेंट करनी होगी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड वर 3 पार्टनर्स, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली 1:1:1। अब वाई की डेथ हो गई या वाई रिटायर हो गया, इन बोथ दीज केसेस वाई इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म। अब जिस वक्त वाई फर्म में आया था उस वक्त उसने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो अब जिस वक्त ये रिटायर हो गया तो सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वाई को हमें देना है 2,50,000। वाई के कैपिटल की पोजीशन इस वक्त है 2,50,000। द पोजीशन ऑफ वाई's capital which is derived from his capital and current accounts is 2,50,000. Now he is expelled from the firm and this amount stands in his capital account and we have to pay him this amount. अब वो पेमेंट हम कैसे करते हैं वही हमें डिस्कस करना है। तो ये जो पेमेंट 2,50,000 वाई को करनी है, इस पेमेंट को करने के लिए फर्म के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। द फर्म हैज डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद इट टू पे दिस अमाउंट टू द पार्टनर। तो सबसे पहली ऑप्शन जो है, सबसे पहले हम ये पेमेंट करने के वक्त सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड को कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या है। पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी। सबसे पहले हम देखेंगे उसमें इसके मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मत लिखी है। तो पार्टनरशिप डीड में अगर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक हम इसको पेमेंट करेंगे। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा इसको ये 2,50,000 इमीडिएटली पे करो, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा ये 2,50,000 इमीडिएटली इसको पे करना है, तो हमें इसको इमीडिएटली पे करें। अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि 2,50,000 इसको इंस्टॉलमेंट्स में देंगे इंटरेस्ट के साथ, विद इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होगा कि इसको इंस्टॉलमेंट देंगे विद इंटरेस्ट, तो उसी तरह से देंगे। सो टू मेक दिस पेमेंट, फर्स्टली व्हाट वी डू, वी कंसल्ट, we go through the partnership deed and see whether the terms and conditions related to this item are given there, and we follow the terms and conditions and pay to the partner। वहां पर ये terms and conditions लिखी होगी कि immediately पे करो या installments में पे करो इंटरेस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर immediately इसको पे किया, अगर हमने इसको ये immediately किया फुल, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको फुल किया तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त हम उसका कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्लोज करेंगे। रिटायरिंग और डिसीजड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो 2,50,000 तो कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट दे दो इसको 2,50,000 है। अगर हमने इसको इमीडिएटली पे किया 2,50,000 हमने इसको दिया, उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, उसको कैश दिया, तो हो गया इसको इमीडिएट पेमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट केस। अब अगर हमें इसको, अगर फॉर एग्जांपल 2,50,000 में से, फिर हम ये भी कह सकती है 2,50,000 में से 1 लाख देंगे इसको इमीडिएटली। मैंने पहले ही कहा द फर्म हैज डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड दोज ऑप्शंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने वो ऑप्शंस रिकॉर्ड किए हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है पार्टनरशिप डीड में कि 1 लाख इमीडिएटली दे दो, 1 लाख इमीडिएटली कैश दे दो। तो जो 1 लाख रहा वो 1 लाख क्या दे दो इंस्टॉलमेंट्स में। तो जो इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, जो पैसा इसको इंस्टॉलमेंट्स में देते उसको इंटरेस्ट के साथ उसको देना है फर्म में।
तो उस वक्त ये जो 1,50,000 वहां पर रह गया वो उसके लोन अकाउंट में डालेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 1,50,000। तो फिर इसी लोन अकाउंट से जितना हम इसको इंस्टॉलमेंट देंगे इंटरेस्ट के साथ उसी हिसाब से इंक्रीज होंगे। These are the two options: when the whole amount is paid immediately, or when some part of the when some portion of this amount is paid immediately and rest of the amount is paid in installments. The amount that is to be paid in installments is put in his loan account. This amount is considered as a loan given by this partner to the firm, because अब ये फर्म के पास ये 1,50,000 रहता है, फर्म इसको यूज कर सकती है, यूज करेगी, तो पार्टनर को पार्टनर को जब इंस्टॉलमेंट में ये देगी फर्म पार्टनर को ये पैसा, तो उस वक्त फर्म को इंटरेस्ट के साथ देना होगा। तो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अब हमने ये ऑप्शंस पढ़ी, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इमीडिएटली पे करो, पार्शियली पे करो, कुछ पोर्शन इमीडिएटली पे करो, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करो, जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है वो हम लोन अकाउंट में डालते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के वक्त अलग अलग एंट्रीज होती हैं, सिंपल वो एंट्रीज हैं। तो उस वक्त क्या होगा, जो हमने 1,50,000 लोन अकाउंट में डाला, तो उस वक्त क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे करने के वक्त लोन अकाउंट को डेबिट देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट पे करने के वक्त रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। उसमें 1,50,000 था, अभी उसके लोन अकाउंट में कितना था, 1,50,000। फॉर एग्जाम्पल हमने 50,000 का इंस्टॉलमेंट रखा, 50,000 का इंस्टॉलमेंट रखा, उस पर फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट चढ़ा 150, तो हम लिखेंगे 50,150 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये हमने पार्टनर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 50,150। तो इसी तरह से इंस्टॉलमेंट इसकी इंक्रीज होंगी। फिर तो किसी वक्त किसी टाइम पे पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होगा कि इमीडिएटली कुछ अमाउंट इसको नहीं मिलेगा, उसको हम पूरे का पूरा अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री ऐसे ही होगी। तो उस वक्त क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे, पार्टनर्स की रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया हमने क्लोज 2,50,000, वो 2,50,000 पूरे का पूरा हम टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में डालेंगे। फिर लोन अकाउंट में डाल के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ये एंट्री होगी, अगर 50,000 का रखा, सेकंड इंस्टॉलमेंट पर भी ऐसी एंट्री होगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट पर भी ऐसी एंट्री होगी, जब तक ये अमाउंट उसका हम पूरा पे करेंगे। दिस इज हाउ वी पे दिस अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, इफ इट इज एग्रीड अपॉन। लेट अस रिवाइज इट। हम आप इसको थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए। तो so now let us revise it. If we pay when whole amount is paid immediately, अगर इमीडिएटली होल अमाउंट दैट इज पेएबल टू द पार्टनर हम पे करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, which partners capital account debit, retiring oblique deceased partners capital account को हम डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उस केस में हम उस एग्जाम्पल में हम उसको 2,50,000 देना था, तो पूरे का पूरा हमने इमीडिएटली पे किया, दैट मीन्स वी पेड कैश और वी पेड थ्रू बैंक अकाउंट 2,50,000। तो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम पूरे का पूरा इमीडिएटली पे नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी पेड व्हेन सम पोर्शन
of amount is paid immediately and rest is paid in installments. अब अगर हम कुछ पोर्शन उसको इमीडिएटली देंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट से देंगे, तो उस वक्त उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, रिटायरिंग ओब्लिक डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट करो पूरा 2,50,000। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हमने 1 लाख उसको इमीडिएटली दिया, तो कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, हमने कैश थ्रू बैंक उसको 1 लाख इमीडिएटली दिया, 1 लाख। तो जो बाकी 1,50,000 रहा वो हमें इसको इंस्टॉलमेंट्स में देना है। जब हमें इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो वो लोन कंसिडर किया जाएगा। उस वक्त वो पैसा हम तो लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 1,50,000 वो हम लोन अकाउंट में डालेंगे। फिर इसी लोन अकाउंट से, जिस तरह मैंने वो एंट्री दिखाई, इसी लोन अकाउंट से जिस वक्त इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, इसी लोन अकाउंट से वो डेबिट होंगे वो इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है 50,000 का, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 50,000 का, तो इंटरेस्ट अगर है 150, तो टोटल हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसको देना है 50,150। तो उस वक्त यही 50,150 इस लोन अकाउंट से डेबिट होगा, यानी इस लोन अकाउंट से हमने इसको 50,150 इसको पे किया। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 50,150, इसमें से 50,150 हमने पे किया, क्या किया, टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट थ्रू बैंक या कैश हमने 50,150 किया पे। तो बाकी जो रहा वो बाकी इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। तो हो गए दो केसेस, व्हेन फुल अमाउंट इज पेड इमीडिएटली और व्हेन सम पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट इज पेड इमीडिएटली एंड रेस्ट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब हमारे पास तीसरी ऑप्शन है कि पूरे का पूरा जो अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो पूरे का पूरा अमाउंट जब इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, तो उस वक्त भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पहले क्लोज करेंगे, रिटायरिंग ओब्लिक डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000, यानी अकाउंट क्लोज करो। तो इस वक्त हमें इमीडिएटली कुछ नहीं पे करना है, पूरे का पूरा इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो पूरे का पूरा लोन कंसिडर किया जाएगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट 2,50,000 डालो लोन अकाउंट में। तो फिर इसी लोन अकाउंट से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो उस वक्त जितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जाम्पल 50,150 है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इज 50,150। तो उस वक्त लोन अकाउंट को डेबिट देंगे, लोन अकाउंट डेबिट रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 50,150, यानी इसमें से 50,150 डिडक्ट हो गए। वो हमने क्यों डिडक्ट किए, बिकॉज वी पेड कैश और थ्रू बैंक to this partner 50,150 first installment. This is how the payment is made to the retiring or the executors of this deceased partner. Now this is how the payment is made if it is mentioned in the partnership deed. Now if the partnership deed doesn't mention, or if the partnership deed didn't contain एनीथिंग रिगार्डिंग दिस पेमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड में इस पेमेंट को करने के लिए अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि किस तरह हम ये पेमेंट करेंगे, तो दूसरी तरफ से अगर फर्म इमीडिएटली पे नहीं कर सकी, एक द फर्स्ट कंडीशन इज इफ द पार्टनरशिप डीड हैजंट मेंशनड द मोड ऑफ दिस पेमेंट, फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज, and then if this firm in which this partner retires or dies, if the firm in which this partner retires or dies is unable to pay this amount to the partner immediately,
तो उस वक्त क्या होता है, दो चीज़ें, अब दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक ये हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन नहीं किया गया है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी तरफ से फर्म को भी इस वक्त, फर्म के पास भी पैसे मौजूद नहीं है कि वो इसको पे करेंगे इमीडिएटली। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो है उसी की गाइडलाइंस अप्लाई होती है। तो वो गाइडलाइंस ये है, या देयर आर टू ऑप्शंस दैट are given in this Indian Partnership Act 1932. The first option is if this firm is unable to pay, and on the other hand partnership deed also doesn't contain the options, then the first option is, पहली ऑप्शन जो है, इस फर्म को, पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू एक्चुअल पेमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट करने तक शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है पार्टनर को, क्योंकि ये पैसा पार्टनर का फर्म में रहता है, फर्म इस पैसे को यूज कर दिया तो पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। या तो ये है, या तो फर्म दूसरी ऑप्शन यूज कर सकती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो दूसरी ऑप्शन ये है, फर्म को इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स में विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम। जब तक फर्म के पास ये पैसा जमा होगा कि वो पार्टनर को पेमेंट कर सकेगी, तब तक फर्म को अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये दो ऑप्शंस फॉलो कर सकती है। या तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है उस पार्टनर को, या इंस्टॉलमेंट्स देने हैं विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फर्म इन दो ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन फॉलो कर सकती है। लेकिन ये दो ऑप्शंस कब अप्लाई होती हैं, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया गया होगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, हम इमीडिएटली देंगे, इंटरेस्ट कितना रखेंगे, इंस्टॉलमेंट कितना रखेंगे, ठीक है ना। तो सम पोर्शन इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, सम इमीडिएटली देंगे। जब वो कंडीशन पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट होंगी, मिसिंग होंगी, उसमें नहीं लिखा होगा, तभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये दो क्लाजेस अप्लाई होते हैं। तो इन दो क्लाज में से कोई ना कोई ऑप्शन फिर फर्म को फॉलो करनी ही होती है। दिस इज हाउ वी मेक द पेमेंट टू द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। आई होप you understood it very well, and in the next lecture we will be discussing, that will be our last lecture on reconstitution. We will be discussing the two cases of adjustment of capital in case of retirement or death of a partner, and then we will be concluding it, the reconstitution of partnership, and then we will be starting dissolution, and then partnership will be, the discussion on partnership will be over. I hope you understood very well. Thank you. Allah Hafiz.